Hello students, we are going to discuss some important concepts related to Python language. Let's discuss the term function. Function is nothing but a block of code, or you can say a piece of code that perform a specific task. किसी भी specific task को perform करने के लिए we use function और function is nothing but a block of code. आपने एक code का piece of code लिखा है. बेसिकली फंक्शन प्रोवाइड करते हैं दो चीज़ें, एक तो बेटर मॉड्यूलरिटी एज वेल एज हाई डिग्री ऑफ कोड रीयूजिंग. इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. ये फंक्शन यूजुअली प्रोवाइड्स अस रीयूज मैकेनिज्म. रीयूज मैकेनिज्म दैट सिंपली मीन्स कि अगर आपने एक बार एक फंक्शन लिखा है तो उस फंक्शन को वी कैन कॉल इट मैनी टाइम्स. आप एक फंक्शन को कितनी भी बार कॉल कर सकते हो. दैट डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूज मैकेनिज्म और कोड रीयूजिंग. मॉड्यूलरिटी मीन्स एक्चुअली द फंक्शन हमको हेल्प करते हैं टू डिवाइड आवर प्रोग्राम इनटू मल्टीपल टास्क. ओके, और फॉर ईच टास्क वी डिफाइन अ फंक्शन. मीन्स हमने कहा कि फंक्शन हमको हेल्प करते हैं कि हम एक प्रोग्राम को मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर सकते हैं और इस टास्क में डिवाइड करने के बाद हर टास्क के लिए हम एक स्पेसिफिक फंक्शन लिखते हैं. ठीक, और इसका मतलब क्या हो रहा है योर कोड इज बिकमिंग मॉड्यूलर. आपका जो कोड है इट इज बिकमिंग मॉड्यूलर. फंक्शन हमारे पास नॉर्मली वी हैव टू टाइप्स ऑफ फंक्शन. either built-in functions, for example print, and you can create your own function according to your need. इसको हम बोलते हैं user defined functions. There is a simple syntax or simple rule to define function in Python. First, हमारे पास एक block of code है that begins with the keyword def and then followed by function name and then within parenthesis after colon we have to define the body of the function. What will the function do? That means code block within every function start with a colon and is indented. As you know, in Python indentation is quite important. And then you can have a written statement. It is optional, you can have it or none. A written statement with no argument is very similar to the written none. Let's discuss the syntax of a Python. Simply, you have to use the keyword def. That simply means we are defining the function. Then you have to name a function, name your function, and then you have to, within parentheses, you have to pass the parameters. यहाँ parameters pass कीजिए. Then you have to use colon, and here after intent you have to use function's body, what this function will do, body of the function, and then you have return statement. अगर कोई function कोई value return कर रहा है तो then return your value, जो भी any x value आप return कर रहे हो. If I have simply written return statement, then it will return nothing. For example, suppose I have used a print me function here where as a parameter we have taken str. ठीक, and this is the body of a function we are printing simply this string. This is the very simple example of function. हमने एक hello name से एक function define किया है और उसके अंदर we have written 3 statements. First one is we have printed out how are you, then hello, then hello there. And I am calling function 3 times. Hello, 1, 2 and 3. So what will happen when this function call gets executed, these all 3 statements will be printed out for the first time. Then
when we again call this function hello, then again these three statement will get printed, and at the end uh, hello, then also this statement will get printed. It simply means कि आप एक function को कितनी बार call कर सकते हो, as it is the term of function reusing. We are just reusing our code. तो आप एक function को multiple time call कर रहे हो, तो this will print these three lines 3 times. This was the simple example of a function in Python language. Let us take another example. यहाँ हमने एक function use किया है of name print me, लेकिन यहाँ हमारे पास एक argument है, और you can say we have a parameter. It means, और उसके बाद हमने यहाँ कुछ नहीं किया, इस string को, ये जो parameter है इसको पास कर दिया है. ये str जो हमने एक पॉइंटर पैरामीटर लिया है इसको प्रिंट किया है. तो हम क्या कर रहे हैं, हमने लिखा प्रिंट मी. इसके अंदर फर्स्ट टाइम जब मैं कॉल कर रही हूँ तो दिस स्टेटमेंट will pass to this function as a parameter. Hence, it will print str means it will print I am first called to use a defined function. ठीक. And again, when I am second time calling it with the different parameter, then it will print, it will take this string or this statement as a parameter, and it will print again second call to the same function. Next, let's थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं कि what is the term means pass by value and pass by reference. जितने भी arguments होते हैं, this is very important time, all arguments or parameters in the Python language are passed by reference. It simply means if you change what a parameter is referred to within a function, the change also reflects back in the calling function. ठीक. कहने का मतलब है, अगर आप चेंज करते हो जो पैरामीटर्स किसके अंदर, फंक्शन के विद इन रेफर कर रहे हैं, वो कॉलिंग फंक्शन के भी पैरामीटर्स को चेंज करेंगे. मीन्स फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन लिया है ऑफ नेम चेंज, और इसके अंदर एक लिस्ट अपेंड की है, और इसको डिफाइन किया है कैसे, इसकी डेफिनेशन में क्या है, हमने एक अपेंड फंक्शन का यूज़ किया है. इसमें हम एक लिस्ट अपेंड कर रहे हैं 1 2 3 4, और उसके बाद हमने सिंपल कुछ नहीं, एक मैसेज प्रिंट किया, प्रिंट वैल्यू इनसाइड द फंक्शन, उसके बाद ये लिस्ट को प्रिंट कर दिया है. अब आउटसाइड द फंक्शन वी आर डिफाइनिंग माई लिस्ट एज अ दिस वे. मीन्स हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें 3 वैल्यूज हैं 10 20 एंड 30. देन आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन चेंज. तो व्हेन दिस कॉल इज हैपन, ये क्या कर रहा है, माई लिस्ट में कितने आर्गुमेंट थे 10 20 30, प्लस इसने क्या किया, ये 1 2 3 4 को क्या कर दिया, 1 2 3 4 को पहले इस लिस्ट के साथ अपेंड किया. तो अपेंड करने के बाद जो लिस्ट अपडेट हो गई वो क्या हो गई 10 20 30, और देन 1 2 3 4 ये अपेंड हो गई वैल्यू इसके साथ. और उसके बाद ये हमने प्रिंट किया, तो इट विल प्रिंट वैल्यू इनसाइड द फंक्शन माई लिस्ट. तो माई लिस्ट विल बी गेट प्रिंटेड लाइक दिस वन. एंड देन जब इसके बाद ये फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होने के बाद जब आप फंक्शन से बाहर आए, then again I am printing this message that is value outside the function mylist. तो ये क्या हो रहा है, ये अगेन सेम लिस्ट को प्रिंट कर रहा है. इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिंपली प्रूव करता है कि इफ यू चेंज व्हाट अ पैरामीटर इज रेफर टू विद इन अ फंक्शन, द चेंज ऑल्सो रिफ्लेक्ट बैक इन टू द कॉलिंग फंक्शन. एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ हमने सेम फंक्शन यूज किया, बट आई एम नॉट यूजिंग एनी अपेंड मेथड हियर. आई हैव डिफाइंड द फंक्शन चेंज एज, here you have a list, my list 1 2 3 4, and then you are printing this one, and again this outside the function, this the contain the values within this list are 10 20 and 30, and then you are calling a function, and last we are printing the my list. Let's look into the example. अब ये पैरामीटर जो चेंज हुए हैं यहाँ पे, ये आर लोकल टू दिस फंक्शन. जब हम इस फंक्शन के अंदर आ रहे हैं तो ये लोकल फंक्शन है. अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल को, तब ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा. तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने लिखा ये लोकल वैल्यूज हो गई. हाँ, ये एक लोकल वेरिएबल हो गया. हमने कहा 1 2 3 4. जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो ये सिंपली यहाँ प्रिंट हो गया क्या, 1 2 and 3 4.
जब आपने सिंपली उसके बाद जो ये लास्ट वाला प्रिंट स्टेटमेंट आप यूज़ कर रहे हो, तो ये कौन सी वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा? इट विल प्रिंट 10, 20 एंड 30। मीन्स एक्चुअली क्या हो रहा है, द पैरामीटर माई लिस्ट इन द फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर ये लोकल है। चेंजिंग माई लिस्ट विद इन द फंक्शन डज नॉट अफेक्ट माई लिस्ट। मीन्स इसके अंदर ये वैल्यू जो हम चेंज कर रहे हैं ना, ये इस वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। तो क्योंकि ये तो ग्लोबल वैल्यूज़ हैं, ये हमारा लोकल वेरिएबल्स है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन ने कुछ नहीं करा, इस फंक्शन में कुछ हुआ ही नहीं, एक्चुअली कोई चेंज नहीं हैपन हुआ। आपने देखा इसके अंदर हमने लिखा 1 2 3 4, प्रिंट हो गया 1 2 3 4, जबकि पैरामीटर कौन से पास हुए थे? 10, 20 एंड 30। तो इससे क्या हो गया, सिंपली इसने क्या करा, इस फंक्शन ने अकम्प्लिश नथिंग एंड फाइनली दिस वुड प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट कि आपका इनसाइड द फंक्शन वैल्यू विल बी 1 2 3 4 एंड आउटसाइड द फंक्शन 10, 20 एंड 30। आई होप कि ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन का मतलब क्या है। क्योंकि फंक्शन हमारा कर क्या रहा है, अगर हम देखें तो फंक्शन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इट इज़ सिंपली अ पीस ऑफ कोड जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं कि आपको इट कैन अचीव और इट कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड टास्क। नॉर्मली हमारे पास टू टाइप ऑफ फंक्शन है, they are built-in functions as well as user-defined functions. For example, built-in function में you can take print, max, sorted, len, and so many functions are there. And user-defined, it is your choice how you are going to define your function and what you want to perform. That's all for today. Next day we will discuss about how we define the and what types of argument are there present in a Python, because we can see कि arguments in Python functions can be of 4 types. First is positional argument, keywords argument, variable length positional arguments and variable length keyword arguments. तो ये हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर्स में. थैंक यू.